Good morning, everyone. In the previous chapter or in the previous lecture, we started with a new chapter that is subsidiary books. I said you subsidiary books is a division or subdivision of the journal. The journal हमने सीखा है the primary books of accounts journal. The first place where book transactions are recorded is a journal. उस बुक्स को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग बुक्स में. Right, in your syllabus there are 6 books. One, cash book, in which we will record all cash receipts, cash payments, bank receipts, and bank payment. So all those transactions which are cash transactions means cash account is debit or cash account is credit. Cash debit मतलब cash received, cash credit मतलब cash paid, bank account debit मतलब bank receipts, and bank credit मतलब bank payments. अगर ऐसे कोई transactions है, irrespective of whether they are related to goods or some other thing, we will record them in the cash book. So try to understand cash book में all cash transactions will be recorded. Then if they are not cash transactions and if they are related to goods, then there are purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. Like if goods are purchased on credit, goods are purchased on credit. Goods are the things in which you do the business. Like example, you are a dealer in clothes. You are a cloth merchant. So clothes are your goods. Furniture is your fixed asset. Vehicle is your fixed asset. Land is your fixed asset. समझ में आ रहा है? If you are a dealer in computers, electronic gadgets, तो electronic gadgets are your goods. Then furniture, vehicle, land and building, that is fixed assets. If you are dealer in furniture, you have a furniture mart. आप फर्नीचर में डीलर हो तो फर्नीचर इज गुड्स, but computers, vehicles, land, building will be fixed assets. Goods are the things in which you do the business. Generally, right, जब भी goods होते हैं तो specifically say purchases goods or say sale of goods. So there is no confusion. So try to understand, when you purchase goods on cash, it is a cash transaction, इसलिए cash book में. But if you purchase goods on credit, वो purchase book में record होगा. And if you sell goods on cash, वो cash book में record होगा. But if you sell goods on credit, वो sales book में record होगा. The goods which were earlier purchased on cash, if return, तो cash book में record होगा, because जब हमने किसी से purchase किया था हमने उसका cash देके goods लेके आए थे, and जब उसको goods return करेंगे तो cash भी लेके आएंगे. So it is a cash, right? वो cash transaction ही रहेगा. So goods purchased on cash, if return, वो cash book में record होगा. Goods purchased on credit, जो purchase book में record हुआ है, if return, वो purchase return book में record होगा, because it is a non cash transaction. ध्यान देना, goods sold on cash earlier and then returned by customer. कस्टमर ने राइट हमसे गुड्स लेके गया और कैश दिए, कैश सेल है, और जब वो रिटर्न करेगा तो हमें उसको कैश रिटर्न करनी होगी. सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन ओनली. सो गुड्स विच आर अर्लियर सोल्ड ऑन कैश एंड लेटर ऑन रिटर्न, तो वो ट्रांजैक्शन राइट कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. बट इफ गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अर्लियर, if goods were sold on credit earlier and later on return, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा. वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न बुक में. सो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. So when you purchase the goods, purchase book. When you distribute goods, free sample. When you distribute goods as a charity, when you distribute goods as a like, or when owner takes away goods for his personal use or goods lost by fire, they are related to goods. They are related to purchases, but they are not purchase of goods. So वो purchase book में record नहीं होगा, वो journal proper में record होगा. जिसका कोई नहीं उसका journal proper होता है. Means all those transactions which do not find place in cash book or purchase book or sales book or purchase return book, all sales return books will be recorded in the journal proper. Other than these 6, ये 6 के सिवा भी there are 2 other books
बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल बुक जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उनको यहाँ पे लिया नहीं, ठीक है। तो ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, और वी टुक सम एग्जांपल्स लाइक फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, भले वो परचेस है बट फर्नीचर इज नॉट गुड्स, सो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बुक में होगा नहीं बिकॉज वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेस बुक में होगा नहीं बिकॉज वो गुड्स नहीं है, तो जनरल प्रॉपर में होगा। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर सपोज फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश है तो कैश बुक में होगा। अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो कैश बुक में नहीं होगा बिकॉज वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल्स बुक में होगा नहीं बिकॉज वो गुड्स नहीं है, तो जनरल प्रॉपर में होगा। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन है, पहले क्वेश्चन पूछना है इज इट रिलेटेड, इज इट कैश और क्रेडिट। अगर पहले क्वेश्चन पूछो इज इट कैश ट्रांजैक्शन, अगर आंसर एस है तो कैश बुक, आगे सोचना ही नहीं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक प्रोसेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करो इज इट ए कैश ट्रांजैक्शन। इफ आंसर इज यस देन कैश बुक, इफ आंसर इज नो तो आपको बाकी बुक्स ढूंढने। आंसर इज नो मतलब इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब इनमें से दूसरे में से कोई भी रहेगा। फिर क्वेश्चन पूछो इज इट रिलेटेड टू गुड्स, इफ यस अगर वो गुड्स के रिलेटेड है तो इट कैन बी परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, इसमें से रहेगा। अगर वो परचेस ऑफ गुड्स का है तो परचेस बुक, अगर वो सेल ऑफ बुक गुड्स का है तो सेल्स बुक, अगर वो रिटर्न ऑफ गुड्स का है परचेस अर्लियर ऑन क्रेडिट वो परचेज रिटर्न बुक, अदरवाइज सेल्स रिटर्न बुक। अगर इनमें से नहीं है, वो गुड्स रिलेटेड नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, आपके जनरल प्रॉपर में जाएगा। सो ये हमें समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक, ऑल दीज बुक्स बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक, परचेस बुक। लिख लेना परचेस बुक, लिख लेना परचेस बुक, लिखो परचेस बुक। परचेस बुक is also called as bought book. Purchases books is also called as सब बुक्स का फॉर्मेट सेम ही है, सो डोंट वरी एट ऑल। Purchases books is called as bought book और purchase day book, purchases day book। सब्सिडी बुक्स को डे बुक्स भी बोला जाता है, सब्सिडी बुक्स को डे बुक भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है, बट जनरली कॉमन नेम इज परचेस बुक ओनली, पीबी परचेस बुक, ठीक है। परचेस बुक आगे ध्यान देना। सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ परचेस डे बुक। अच्छा पहले फॉर्मेट के पहले व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। Which transactions are recorded? परचेस बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? आंसर इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, द आंसर इज गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। विच ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड? जहां पे लोगों का कंफ्यूजन होता है, विच ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। लेट्स सी which transaction occurred first, goods purchased on cash, goods purchased on cash on cash basis। दूसरा, राइट,
anything other than goods, anything other than goods. Example, fixed assets, fixed assets, stationery. If you are not a, right, example, fixed asset, anything other than goods purchased on cash or credit, कैश और क्रेडिट. ये दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते. मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, क्या रिकॉर्ड होते हैं और क्या रिकॉर्ड नहीं होते. गुड्स, गुड्स पता होने, गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. लाइक एग्जांपल, मारुति एमयूएल के लिए, मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए, कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम इज गुड्स. क्रोमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइक विनस ट्रेडर्स स्टेशनरी में बिजनेस करते हैं, स्टेशनरी परचेज बाय देम इज गुड्स. नवनीत के लिए बुक्स परचेज बाय देम इज गुड्स. तो जिसमें आप धंधा करते हो ना, जो माल जिसको बोलते हो आप, दैट इज अ गुड्स. सो which transactions are recorded? Goods purchased on credit. इसका मतलब गुड्स परचेस्ड ऑन कैश इज नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज ये रिकॉर्ड होता है राइट कैश बुक में. किसमें रिकॉर्ड होता है? कैश बुक. ठीक है. देन एनीथिंग अदर देन गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, परचेस्ड ऑन कैश, एनीथिंग अदर देन गुड्स परचेस्ड ऑन कैश रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, एंड ऑन क्रेडिट होगा तो जर्नल होगा जर्नल प्रॉपर में. एंड राइट जर्नल प्रॉपर में. मैं यहाँ पे आंसर भी लिख रहा हूं तो क्लिक होगा. लाइक एग्जांपल, यू परचेस फर्नीचर, यू परचेस एनी फिक्स असेट ऑन कैश, कैश बुक में होगा, ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर में होगा. ठीक है. सो विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ये क्लियर होगा तो आगे चलते हैं. ध्यान देना. अब हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर्मेट. व्हाट इज द फॉर्मेट? ध्यान देना. फॉर्मेट, let's see the format. So फॉर्मेट बहुत सिंपल है. सबसे पहले आएगा डेट. ये जर्नली अलग फॉर्मेट में. इतना भी समझ में आएगा ना सर ये जर्नल है, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई. दिस इज डेट, डेट. फिर आएगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स की जगह हम लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर. हमने किससे गुड्स परचेस किए, तो यहां पे आएगा डेट. फिर आएगा नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर. फिर आएगा, फिर आएगा, ठीक है. किसी का डाउट है क्या? लेट मी चेक. हाँ, एक मैं दिखाता हूं. नो, ओके, लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी करो. which transactions are recorded, which transactions are not recorded. ठीक है. चलो जल्दी करो, कोई इश्यू नहीं, लिखो लिखो. ठीक है. आगे ध्यान देना. फॉर्मेट ऊपर लिखा जाता है परचेज बुक. हेडिंग ऑफ द बुक इज परचेज बुक. ऊपर लिखा जाएगा परचेस बुक. लिखो परचेसेस बुक. परचेस बुक हेडिंग विल बी द
परचेज बुक लिखो। एक सेकंड, लेट मी शेयर द सीन अगेन। Okay, let me share the screen. हेडिंग इज परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे आएगा इनवर्ड इनवाइस नंबर, IIN, इनवर्ड इनवाइस नंबर, इनवर्ड इनवाइस नंबर। व्हेन यू परचेज द गुड्स, सो सामने वाला आपको बिल देता है, इनवाइस देता है, आपका सेलर आपको इनवाइस देगा। ठीक है, एक सेकंड। सो so when you purchase the goods, when you purchase the goods, seller gives you invoice. शांत, आवाज येतोय तुमचा, ठीक है। सो इनवर्ड इनवाइस नंबर मतलब क्या? व्हेन यू परचेज द गुड्स, सेलर विल गिव यू इनवाइस एंड दैट इनवाइस कम्स इनवर्ड, इसलिए इनवर्ड इनवाइस नंबर। एंड जब आप सेल करते हो ना, तो यू गिव इनवाइस टू योर बायर्स, तो दैट इनवाइस नंबर विल बी कॉल्ड एज आउटवर्ड इनवाइस नंबर। Inward at the time of purchase, outward at the time of sale. So inward invoice number. Then okay, मैं थोड़ा इसको और डीप में निकालता हूं, ध्यान देना, ठीक है। मतलब बिल नंबर इन शॉर्ट। आगे फिर यहां पे आता है LF, लेजर फोलियो। LF जर्नल है ना, जर्नल में LF आता है, LF यहां से क्लिक होना चाहिए, जर्नल है। देन फिर आता है ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट, एंड लास्ट में आएगा, राइट, लास्ट में आएगा नेट अमाउंट। लिखो, लास्ट में आएगा अमाउंट, ठीक है। दिस इज नेट अमाउंट, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मेट, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट। आवर एंट्री इज विद द नेट अमाउंट। सो इतने डिटेल में रहता है। लाइक एग्जांपल 2020, द मंथ इज डिसम्बर, मंथ इज डिसम्बर, ध्यान देना। ऑन 1st December you purchase goods from Mr. A, you purchase goods on Mr. A on credit, ठीक है, of ₹1 lakh, of ₹1 lakh, 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10,000 इज अ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब एक्चुअली आपने कितने के गुड्स परचेस किए? 90,000। आपकी एंट्री कितने से होने वाली है? 90,000। सो आपने ए से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, 1 लाख ग्रॉस अमाउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 के गुड्स परचेस किए। ध्यान देना। सेकंड, on 5th of December you purchase goods from B of value 50,000, 10% trade discount, that is 5,000, you purchase goods of 45,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। 10th को you purchase goods from Mr. C of ₹20,000, there is no trade discount, 20,000।
सो आपके परचेस 20,000 है. देन ऑन 15th you purchase goods from D of rupees 60,000. 20% डिस्काउंट है, पकड़ के चलो, ट्रेड डिस्काउंट 12,000 का डिस्काउंट है. मीन्स यू परचेस गुड्स ऑफ 48,000. ठीक है. ऑन 20th you again purchase goods from A, right, of rupees example 15,000, and he has given you trade discount of 3,000 example. तो आपके लिए परचेस कितने के हो गए? 12,000 हो गए. ठीक है. ऑन 25th you again purchase goods from C of rupees, right, 22,000. he has given you 2,000 का discount, right, so 20,000. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. आप बोलोगे सर ये जर्नल में एंट्री क्यों नहीं आती? टू बाय कुछ नहीं आ रहा है. लाइक जब हम ए से परचेस करते तो एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए 90,000. जब हमने बी से गुड्स परचेस किए परचेसेस टू बी 45. सी से जब परचेस किए परचेसेस टू सी 20. जब डी से परचेस किए परचेसेस टू डी 48. जब फिर से ए से परचेस किए परचेसेस टू ए 12,000. परचेसेस टू सी 20. सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा? बीइंग, नरेशन वगैरह कुछ लिखा नहीं. हम ऐसे लिखेंगे भी नहीं. हम एक बुक मेंटेन करेंगे जिसमें खाली क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट. एंड दिस इज द मंथ एंड. एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल टेक द टोटल. हम इसकी टोटल लेंगे. हम इसकी क्या करेंगे? टोटल लेंगे. लेट मी टेक द टोटल. ठीक है. लेट मी यूज द कैलकुलेटर. मैंने कोई भी वैल्यूज ली है, एक सेकंड. सो 90,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 20,000. आई थिंक इट इज 2,35,000. ध्यान देना, 2,35,000. So this is a journal which shows credit purchase of goods in the month of December. So December month में क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. December month में हमने जिन जिन से गुड्स परचेस किए वो दिख रहा है. December 1st को A से परचेस किए 90, December 5th को B से परचेस किए 45, December 10 को C से परचेस किए 20, December 15 को D से परचेस किए 48,000, राइट. 20th को ए से परचेस किए 12,000 के एंड 25th को सी से परचेस किए 20,000 के. टोटल हमने गुड्स परचेस किए 2,35,000 के. कितने के? 2,35,000. सो दिस इज व्हाट दिस इंडिकेट्स. 2,35,000 इंडिकेट्स क्या करता है? दिस इज टोटल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इन दैट मंथ. परचेसेस ऑफ गुड्स इन दैट पीरियड. इन दैट पीरियड, उस पीरियड में, एक मंथ में एग्जांपल, हमने कितने क्रेडिट परचेस किए इन दैट पीरियड. सो एंट्री क्या होगी इसकी? इफ यू आस्क मी एंट्री, विल यू पास 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज? नो, यू विल पास सिंगल एंट्री. एक ही एंट्री बनेगी एंड द एंट्री इज एट द एंड ऑफ द मंथ. क्या एंट्री बनेगी? ध्यान देना. Purchases account debit. Purchases account debit. Right, 2,35,000. Purchases account debit 2,35,000. क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. At the end of the month, ठीक है. Subsidiary books monthly, yearly? No, not necessarily monthly, yearly. You can prepare daily basis. अगर आपके एक दिन में 200, 300, 500 परचेस ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप डेली भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम है? आप वीकली कर सकते हो, आप फोर्टनाइटली कर सकते हो, आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, आपकी चॉइस है. देखो, बुक्स मेंटेनिंग इज आर्ट. ये जो आर्ट है ना, ये आपकी मर्जी है. बिजनेस टू बिजनेस, राइट, थोड़े फॉर्मेट ऑफ द बुक्स चेंज होते हैं. बिजनेस टू बिजनेस बैलेंसिंग ऑफ पीरियड मंथली करते हो. कोई लोग एग्जाम्पल, राइट, जिनके बहुत सारे वॉल्यूम है वो डेली करते हैं. ये
मतलब यहाँ पे हम मंथ की एक एंट्री डाल रहे हैं, पूरे मंथ की एक ही एंट्री डाल रहे हैं क्रेडिट परचेस की। मतलब पूरे मंथ में जितने क्रेडिट परचेस हुए हम एक ही एंट्री डाल रहे हैं। एक्चुअली हमने अभी तक क्या सीखा, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन एंट्री करो। मतलब उसके हिसाब से इस मंथ में ये क्रेडिट परचेस के 6 एंट्रीज होनी चाहिए। कितने एंट्रीज होने चाहिए? 6। तो अब इस 6 एंट्रीज की जगह मैं एक ही एंट्री डालूंगा विच इज इक्वल टू 6। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। बट आपके एक ही दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप डेली एक एंट्री डालो। अगर एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन होते तो आप डेली परचेस बुक बनाओगे, सेल्स बुक बनाओगे, लाइक दैट। सो इट्स योर चॉइस। ऐसे कहां पे लिखा नहीं कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे आपको करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस वेरी वेल। आपको समझना है कितना वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप डेली बेसिस पे करो, मैं बोलूंगा। अगर वॉल्यूम उतना नहीं है तो आप वीकली बेसिस पे करो, फोर्टनाइटली बेसिस पे करो, मंथली करो, क्वार्टरली करो। ईयरली कोई नहीं करता, इतना लार्ज पीरियड कोई नहीं रखता, ठीक है। नहीं, मैंने यहाँ पे मंथली लिया है। परचेसेस अकाउंट डेबिट 2,35,000 टू ए टू ए। एक्चुअली एक से हमने 2 बार परचेस किया। कितना? एक एक हमने 90,000 का परचेस किया है एंड बाद में हमने उससे 12,000 का परचेस किया है। सो ए हमारा क्रेडिटर है 1,02,000 का, 1,02,000। टू बी, टू बी, बी से हमने एक ही बार परचेस किया 45,000। हमने बी से एक ही बार परचेस किया 45,000। एक सेकंड, हमने बी से एक ही बार परचेस किया 45,000, ठीक है। सो टू बी 45,000। टू सी, सी से हमने 2 बार परचेस किया है। एक यहाँ पे 20,000 और बाद में यहाँ पे भी 20,000। टोटल हमने उससे 40,000 का परचेस किया है। टू डी, डी से हमने एक ही बार परचेस किया 48,000। यू कैन सी 48,000। एक ही एंट्री आ गई। नहीं तो आपको कितनी एंट्री डालने पड़ते थे? 6 एंट्री। देखो आपका काम कम हो गया, कितना इजी काम हो गया। इंस्टेड ऑफ पासिंग 6 एंट्रीज एट द एंड, you will pass single entry like this: purchases account debit to A, to B, to C, to D. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप क्या करते हो, इन अकाउंट्स को, इंडिविजुअल अकाउंट्स को आप डेबिट करते हो। सॉरी, इन ये टोटल आप डेबिट करते हो। ये जो टोटल है ना, ये टोटल टोटल आप डेबिट करते हो किस अकाउंट को? परचेस अकाउंट को। टोटल ऑफ परचेस बुक, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल ऑफ परचेस बुक रिप्रेजेंट्स 2,35,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट, टोटल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इन दैट पीरियड। So that is to be debited to purchase account. So total of purchase book is posted to, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। Total of purchase book is posted to debit of purchase account, is posted to debit of purchase account। And जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है हम पार्टीज को क्रेडिट करेंगे। ए को क्रेडिट करेंगे 90,000, ए को क्रेडिट करेंगे 90,000, बी को क्रेडिट करेंगे 45,000, सी को क्रेडिट करेंगे 20,000, डी को क्रेडिट करेंगे 48,000, ए को क्रेडिट करेंगे राइट 12,000, सी को क्रेडिट करेंगे 20,000। बिकॉज ये हमारे क्रेडिटर्स हैं तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। ए हमारा क्रेडिटर है, बी हमारा क्रेडिटर, ये सब हमारे क्रेडिटर्स है तो हम उनको क्रेडिट करेंगे इंडिविजुअली। हम उनको इंडिविजुअली क्रेडिट करेंगे एंड एट द एंड जो टोटल है ना, ये टोटल परचेस अकाउंट को डेबिट मारेंगे। सो आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। आपने जितना क्रेडिट किया है 2,35,000 विल बी इक्वल टू डेबिट ऑफ 2,35,000। तो ऐसे लिख लेना, अभी लिख लेना एवरीवन। ये जो मैंने लिखा है मेक इट फास्ट, लिखो जल्दी करो। मैं चाहे तो वीडियो बंद करता तो आपको पूरी स्क्रीन दिखे। ठीक से लिखो।
मेक इट फास्ट। सो इससे क्या होता है ना, आपको ट्रेस रहता है किससे कितना परचेस किया, कैसे किया, और एट द एंड हम क्या करेंगे, मैं वो लिखने वाला हूं, लिख लेना, पहले ये लिखो फिर मैं समझाऊंगा। हम हम क्या करेंगे, परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट को डेबिट मानेंगे। 2,35,000 एक ही बार परचेस अकाउंट को डेबिट होगी, एंड पार्टीज को क्रिएट करते रहेंगे। ए को क्रिएट करेंगे बाय परचेस 90,000, फिर बी को क्रिएट करेंगे बाय परचेस 45,000, सी को क्रिएट करेंगे बाय परचेस 20,000, डी को क्रिएट करेंगे बाय परचेस 48,000, ए को क्रेडिट करेंगे बाय परचेस 12,000, सी को क्रेडिट करेंगे बाय परचेस 20,000। तो हम पार्टीज को क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे क्रिएटर्स है। परचेस बुक में सप्लायर्स होते हैं बिकॉज हम उनसे परचेस करते हैं क्रेडिट पे, तो हमारे वो क्रेडिटर्स होते हैं। परचेस बुक में क्रेडिटर्स होते हैं, तो हम उन क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, एंड परचेस बुक की टोटल रिप्रेजेंट्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स, तो परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो एक अकाउंट में डेबिट होगा पूरी टोटल, और अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट होगा अलग अलग डेट्स पे। वो मैं लिख के देने वाला हूं, तो पहले ये लिख लेना, ये हुआ तो यस लिख देना, सो दैट आई कैन मूव अहेड। मेक इट फास्ट। मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन लिया, मुझे भी याद नहीं क्या ट्रांजैक्शन है, बट मुझे सिखाना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये वाली नीचे एंट्री लिख देना, ये फिर जिनका हुआ है प्लीज ये वाली एंट्री लिख दो। एंट्री शॉर्ट में ऐसे हो गई। अब 6 एंट्रीज नहीं है, ध्यान देना, अब एंट्री की नहीं हमने, हमने यही लिख दिया, ठीक है। तो एंट्री ऐसे होगी, इसका मतलब एंट्री ऐसे होगी, परचेस बुक मतलब ऐसे, एक ही एंट्री में काम खत्म। सो इट अवॉइड्स रिपीटेशन। एक ही एंट्री 10 बार लिखने की जरूरत नहीं, पूरे मंथ में एक ही एंट्री, ठीक है। देन अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, पोस्टिंग। लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी? फर्स्ट, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट को ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में, डी के अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। दे आर क्रेडिटेड, उनको क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा। दे आर क्रेडिटेड एज बाय परचेसेस, हम उनके क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेसेस, राइट, ऑन रिस्पेक्टिव डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिस्पेक्टिव डेज ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड, ठीक है, परचेसेस अकाउंट। परचेस बुक दो अकाउंट देता है। परचेस बुक आपको दो अकाउंट के बारे में बात करेगा, एक परचेस अकाउंट एंड दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेस बुक में क्रेडिट परचेस आते हैं ना, तो एक परचेस अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड परचेस अकाउंट में डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट है परचेसेस अकाउंट। इट इज डेबिटेड as, it is debited as to sundries as per purchase book with total of purchase day book, total of purchases book। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या। मैं समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिख लेना। ये कॉलेज में नहीं सिखाते, ये जो अभी ले रहा हूं ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, ये हमारा आगे वाला चैप्टर है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करेंगे ना, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पोस्टिंग पार्ट है ना, एक्चुअली परचेस बुक मेंटेन करना कोई भी कर लेगा, गधा भी कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VIMP करके रखना। एंड इसकी लिंक रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें ये लगेगा, ध्यान देना। मतलब
हम क्या करेंगे, ध्यान देना, पूरे मंथ हम एंट्रीज पास नहीं करेंगे, पूरे मंथ हम एंट्री नहीं पास करेंगे। हम क्या करेंगे, गुड्स परचेस हो गए, क्रेडिट पे इसमें रिकॉर्ड कर दिया, ए से परचेस हुए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, बी से परचेस हो गए यहाँ पे रिकॉर्ड किया, सी से किए यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। जैसे जैसे हम गुड्स परचेस करते रहेंगे मंथ में, हम एंट्री नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इट इज इक्वल टू जर्नल एंट्री, इसका मतलब ही जर्नल एंट्री है। समझ में आ रहा है? ऐसे एंट्री नहीं लिखेंगे, ऐसे एक्चुअली हम एंट्री लिखेंगे ही नहीं, ये खाली आपको समझने के लिए ये वाली एंट्री, ऐसी एंट्री हम लिखेंगे ही नहीं। एक्चुअली होगा क्या, ऐसे एक बुक मेंटेन किया जाएगा जिसमें सब जिन जिन से परचेस किए वो लिखा जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, लेजर बुक में देयर विल बी अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट रहेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। एक ए का अकाउंट रहेगा, ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं जितना रिलेवेंट है उतना निकाल रहा हूं, बाकी नहीं, ध्यान देना। ए का अकाउंट है लेजर बुक्स में, ए का अकाउंट है, दूसरा बी का रहेगा, ठीक है, वैसे सी का रहेगा, डी का रहेगा, ए बी सी डी, ये हमारे क्रेडिटर्स है, ठीक है। एंड एक अकाउंट रहेगा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज, ठीक है। मैं फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूं नीचे, ध्यान देना। क्या होता है, सपोज एवरीवन, ध्यान देना, मैं फिर से लिखने वाला हूं, आप खाली आपको ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, अब ध्यान देना, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया, कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व करना। ये हमारा लेजर बुक है, ये लेजर बुक है, कौन सा, ये जिसमें हमने ए बी सी डी अकाउंट्स ओपन किए, ए बी सी डी एंड परचेस अकाउंट ओपन किए, लेजर बुक है। ये आपका जर्नल है, ये जर्नल है, कौन सा जर्नल है, परचेस बुक का, क्रेडिट परचेस का जर्नल। 1 तारीख को हमने ए, राइट, हमने 1 दिसंबर आ गया, हमने ए से परचेस किए तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए, हमने ए से क्रेडिट पे परचेस किए, हमने ए से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा ए, 1 लाख ग्रॉस वैल्यू के परचेस किए, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट मिला, 90,000, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। सो आज तारीख है 1 दिसंबर, हमने 1 दिसंबर को ए से परचेस किए, यहाँ पे रिकॉर्ड किया, और फिर यहां से क्या करना है, ए हमारा क्रेडिटर बन गया, 1 तारीख को ए हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, तो ए के अकाउंट में जाना है, और December 1 को हमें उसको क्रेडिट करना है, बिकॉज हमारा क्रेडिटर है, बाय परचेसेस 90,000, ए के अकाउंट में जाना है और ए को क्रेडिट करना है बाय परचेसेस 90,000। तो 1 तारीख को हमने क्या किया, जैसे हमने ए से गुड्स परचेस किए, हमने वो ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड किया, एंड जैसे हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया, वहां से मैं पार्टी के अकाउंट में, इंडिविजुअल बंदे के अकाउंट में गया और उसको मैंने क्रेडिट किया। तो मैंने वही लिखा है, ध्यान देना, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, ए के अकाउंट में मैंने क्या किया, मैंने ए के अकाउंट में क्या किया, मैंने उसको क्रेडिट किया एज परचेसेस ऑन रिस्पेक्टिव डेज ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने उस दिन पे, जिस दिन मैंने परचेस किया, 1 दिसंबर को मैंने ए से परचेस किया, तो मैंने ए के अकाउंट में 1 दिसंबर को उसको क्रेडिट किया। सर आपने परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे क्या, आपने यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट नहीं करोगे क्या, परचेस अकाउंट को हम मंथ के एंड में हाथ लगाते हैं, ध्यान देना, परचेस अकाउंट को मंथ के एंड में हाथ लगाते हैं, इंडिविजुअल पार्टीज के अकाउंट को डेली हाथ लगाते हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ पार्टीज के अकाउंट अपडेट करना है, राइट, जिस दिन हम गुड्स पर, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रिंसिपल है आगे से,
जब भी हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं, पार्टीज के अकाउंट इज अपडेटेड ऑन डेली बेसिस। पार्टीज अकाउंट में डेली बेसिस पे पोस्टिंग होगी। सो ए के अकाउंट में जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उस दिन पोस्टिंग होगी। तो एक्चुअली हमने क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया, ध्यान देना। फिर हमने 5 दिसंबर को बी से परचेस किए, राइट। हमने 5 दिसंबर को बी से गुड्स परचेस किए, बी से गुड्स परचेस किए ऑफ 50,000 नेट ऑफ टीडी, राइट ना। सो हमें क्या करना है, 50,000 माइनस 5,000, तो यहां पे आ जाएगा 5 दिसंबर को हमने बी से परचेस किए 50,000, 5,000 इज ट्रेड डिस्काउंट, हमने 45,000 पे परचेस किया। रिकॉर्ड करो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किस में होगा, परचेस बुक में होगा, बिकॉज दिस इज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। यहां से पोस्टिंग कहां पे करनी है, बी के अकाउंट में जाओ। बी के अकाउंट में 5 तारीख को, दिसंबर 5, वो हमारा क्रेडिटर हो गया बाय परचेसेस। वो हमारा 40,000 का या 45,000 का क्रेडिटर हो गया, 45 का। हमने बी को जाके अपडेट कर दिया, इंडिविजुअल अकाउंट को उसी दिन अपडेट किया। सर आपने परचेस को डेबिट नहीं किया, मंथ के एंड में करेंगे, मंथ के एंड में करेंगे, ठीक है। आगे फिर हमने राइट 10th को सी से गुड्स परचेस किए 20,000, 10th दिसंबर को सी से परचेस किए, राइट 20,000 के गुड्स परचेस किए, कितने के, 20 विदाउट एनी ट्रेड डिस्काउंट। सो आज हम क्या करेंगे, सी हमारा क्रेडिटर हो गया, तो 10th दिसंबर को सी हमारा क्रेडिटर हो गया, तो सी के अकाउंट में जाएंगे और दिसंबर 10 को हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ 20,000, वो हमारा 20,000 का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। आगे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। सो ठीक है, सो हमने उसको क्रेडिट किया। सर आपने परचेस को डेबिट नहीं किया, मंथ के एंड में एक साथ। फिर 15 तारीख आ गई, 15 तारीख को हमने डी से परचेस किया, कितने के परचेस किया, डी से हमने 60,000 माइनस 12,000, हमने डी से परचेस किए 60,000 माइनस 12,000, हमने 48,000 के गुड्स परचेस किए, डी से हमने गुड्स परचेस किए। तो 15 दिसंबर को डी को क्रेडिट करेंगे, दिसंबर 15 को बाय परचेसेस, हमने उससे 48,000 के गुड्स परचेस किए, हमने उससे 48,000 के गुड्स परचेस किए, किसे, डी से परचेस किए, ठीक है। सर परचेस को डेबिट मंथ के एंड में। फिर 20th को हमने फिर से ए से परचेस किया, 20th को देखो हमने ए से परचेस किए थे 15,000 एट 3,000 ट्रेड डिस्काउंट, 15,000 एट 3,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने 12,000 पे गुड्स परचेस किए। कितने पे गुड्स परचेस किए, 12,000 पे हमने गुड्स परचेस किए, ठीक है। सो हमने उससे 12,000 पे गुड्स परचेस किए। तो अब हम क्या करेंगे, 20th को ए फिर से क्रेडिटर हो गया, तो 20th को ए को आके क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस। वो कितने का क्रेडिटर हो गया मेरा, यहां पे 12,000 का क्रेडिटर हो गया, 12,000 का, ठीक है। एंड मंथ का एंड में 25th को हमने सी से परचेस किए, हमने सी से परचेस किए, कितने के परचेस किए, लेट मी चेक, हमने परचेस किए 22 माइनस 2, 22 माइनस 2, देन दैट इज 20,000। सो सी हमारा क्रेडिटर हो गया 25th को, तो सी को क्रेडिट किया जाएगा बाय परचेसेस 20। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान देना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है, जब क्रेडिट परचेस हो रहे हैं ऑफ गुड्स, हम परचेस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कहां पे हो रहा है, परचेस बुक। एंड पोस्टिंग कहां पे कर रहे हैं, पार्टीज को क्रेडिट कर रहे हैं।
ए को क्रेडिट किया, बी को क्रेडिट किया, सी को क्रेडिट किया, डी को क्रेडिट किया। कब कब क्रेडिट किया? उनके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे। मतलब हम पूरे मंथ क्रेडिट कर रहे हैं, परचेस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और पार्टीज को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर ही नहीं रहे। क्या हो रहा है देखो, जैसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए, रिकॉर्ड किया परचेस डे बुक में, रिकॉर्ड किया मतलब जर्नल में रिकॉर्ड किया। ये जर्नल है आपका, ये क्या है? जर्नल है। और वहां से लेजर में पोस्ट करना होता है। तो हमने पार्टीज को क्रेडिट किया, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया, पूरे मंथ हम क्रेडिट ही कर रहे हैं। सर हमने डेबिट किया ही नहीं, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही नहीं। यू आर करेक्ट। तो ध्यान देना, जैसे मंथ खत्म हो जाएगा हमें परचेस बुक की टोटल लेनी है। जैसे मंथ खत्म हो जाएगा हमें परचेस बुक की टोटल लेनी है, विच इज 2,35,000। मंथ खत्म हो गया, हम लेंगे 2,35,000 और ये टोटल हम परचेस अकाउंट में डेबिट करेंगे एक ही बार। सो परचेस अकाउंट मंथ के एंड में पोस्ट होगा December 31st। 2 क्या बोल के होगा? 2 डेबिट करना है सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, परचेसेस बुक 2,35,000। सो क्या हुआ? ध्यान देना कैसे हमने पोस्टिंग की। अब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट पोस्टिंग है। हमने पूरे मंथ जैसे जैसे व्हाट इज द प्रोसेस, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगे हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वहां से हम पार्टीज के अकाउंट रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करेंगे। क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना प्रोसेस, जैसे ट्रांजैक्शन होंगे, ये फंडा परचेस बुक का जो फंडा है वो सेल्स बुक का भी है, परचेस रिटर्न का भी है, सेल्स रिटर्न का भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये फंडा सबके लिए। जैसे ट्रांजैक्शन होंगे हम राइट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और पोस्टिंग करते टाइम दो राइट पार्टीज अकाउंट को पोस्ट करेंगे। लाइक परचेस बुक में क्रेडिटर्स अकाउंट रहेंगे बिकॉज हमने परचेस करते हो क्रेडिटर्स होते हैं। सेल्स बुक में डेटर्स अकाउंट रहेंगे बिकॉज हम डेटर्स को सेल करते हैं। परचेस रिटर्न बुक्स में क्रेडिटर्स रहेंगे बिकॉज जो रिटर्न करे वो हमारे क्रेडिटर्स। परचेस रिटर्न बुक में जिनको हम रिटर्न करे वो हमारे क्रेडिटर्स है। सेल्स रिटर्न बुक में डेटर्स रहेंगे बिकॉज जो रिटर्न करे वो हमारे डेटर्स है। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेली बेसिस पे अपडेट करेंगे। क्या बोल रहा था? ध्यान देना, लेजर में हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अपडेट करते रहेंगे। बट परचेस अकाउंट डेली बेसिस पे अपडेट नहीं होगा, परचेस अकाउंट मंथ के एंड में अपडेट होगा। उसमें एक ही आ गया, देखो पूरा 2,35,000 एक ही बार आ गया। सो अब जितना क्रेडिट है मंथ के एंड में क्रेडिट इक्वल टू डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। देखो हमने 1 दिसंबर को ए को क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया था। ए को क्रेडिट किया बाय परचेस, परचेस को डेबिट नहीं किया था हमने, मतलब डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हमने 5 दिसंबर को बी को क्रेडिट किया बाय परचेस, बट परचेस को डेबिट नहीं किया था 5 दिसंबर को, डबल एंट्री कंप्लीट नहीं है। फिर 10 दिसंबर को हमने सी को क्रेडिट किया 20,000 बाय परचेस बोल के, परचेस को डेबिट नहीं किया, डबल एंट्री इनकम्प्लीट है। फिर 15 दिसंबर को हमने डी को क्रेडिट किया 48,000, हमने डेबिट नहीं किया, डबल एंट्री इनकम्प्लीट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से हमने ए से परचेस किया 20th को, तो ए को क्रेडिट किया, परचेस को डेबिट नहीं किया, एंट्री इनकम्प्लीट है। ठीक है। एंड 25 दिसंबर को हमने सी से परचेस के क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया। सो हम ए बी सी डी ये जो पार्टीज अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, इनको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो मैंने वही लिखा है, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम, दे आर क्रेडिटेड एज बाय परचेसेस ऑन रिस्पेक्टिव डेज ऑफ ट्रांजैक्शन। हम उनको डेली बेसिस पे डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पे अपडेट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ परचेसेस अकाउंट क्या करेंगे, इट इज डेबिटेड एज टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक विथ टोटल ऑफ राइट परचेस बुक एट द एंड ऑफ द मंथ, एट एंड ऑफ मंथ। एक्चुअली आपकी लेजर में डबल एंट्री कब कंप्लीट होगी, मंथ के एंड में होगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम इनको क्रेडिट करेंगे। ए को क्रेडिट करेंगे 1 दिसंबर को क्रेडिट करेंगे 90,000, बी को क्रेडिट करेंगे 45,000 ऑन 5 दिसंबर, सी को क्रेडिट करेंगे 10 दिसंबर को 20,000, डी को क्रेडिट करेंगे 15 दिसंबर को 48,000, ए को फिर से क्रेडिट करेंगे 20 दिसंबर को 12,000, सी को फिर से क्रेडिट करेंगे 25 दिसंबर को 20,000। एंड ये पूरा होने के बाद मंथ के एंड में परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे एक ही साथ
35,000. So parties account are updated on daily basis. Purchase account is updated at the end of the month. This is the funda. पार्टीज अकाउंट डेली बेसिस पे क्यों अपडेट किया जाता है? बिकॉज हमें उनसे पैसे लेने होंगे, देने होंगे, तो उनको बोल नहीं सकते मंथ एंड पे रुको, हम मंथ एंड पे आपका लेजर अपडेट करेंगे और फिर पे करेंगे. नहीं नहीं, हम पार्टीज अकाउंट क्यों डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है? बिकॉज हमको उनको लेना देना रहता है, तो हमको मंथ एंड तक नहीं रुका सकते. एक को ये नहीं बोल सकते कि तेरे फर्स्ट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है मंथ के एंड में अपडेट करेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते. इसलिए पार्टीज अकाउंट डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं. परचेस अकाउंट मंथ के एंड में अपडेट होगा. राइट? अगर आपको ये समझाए तो अच्छी बात है. इट्स 11 o'clock, कोई बच्चों का कॉलेज है. सो आई विल एंड टुडे. मंडे आई विल बी टेकिंग लेक्चर. मंडे आई हैव अपॉइंटमेंट एट ए पासपोर्ट ऑफिस मुंडवा में. सो मंडे में नहीं लेक्चर लूंगा. मे बी आई विल बी टेकिंग लेक्चर ऑन ट्यूसडे. मंडे इफ पॉसिबल इन द इवनिंग सेशन लाइक 3:30 to 4:30, ऐसे बीच में मैं लेक्चर ले सकता हूँ. मंडे आई विल अपडेट यू. कल इकोनॉमिक्स का लेक्चर होगा. ठीक है, बट ये पढ़ लेना प्लीज फॉर माई सेक. ये पोस्टिंग समझ लेना. ठीक है, क्या करना है? एक फंडा हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना. कौन सा फंडा? कि हम पार्टीज अकाउंट को डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आर अपडेटेड ऑन डेली बेसिस. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आर अपडेटेड ऑन डेली बेसिस. उनका बिकॉज हमें पेमेंट लेना देना होता है, उनको मंथ एंड तक नहीं रुका सकते. ऑन द कॉन्ट्ररी, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, वो मंथ के एंड में अपडेट किए जाते हैं. ठीक है? सो आज हम यहाँ पे रुकेंगे. मैंने परचेस बुक की कंसेप्ट सिखाई आपको. राइट? नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये थोड़ी फर्क कंसेप्ट से समझ में आई है, ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन द पोस्टिंग अगेन? देखो क्या होता है. हमने ए से परचेस किया, हमने ए से गुड्स परचेस किए. कितने के? 90,000 के. तो ए को क्रेडिट किया गया 90. ए को क्रेडिट करना है 90 और परचेस को डेबिट करना है 90. परचेस को डेबिट करना है 90. ठीक है, फिर हमने बी से परचेस के 45. बी से परचेस के 45, तो बी को क्रेडिट करो 45, परचेस को डेबिट करो 45. ठीक है, फिर हमने सी से परचेस के 20, तो सी को क्रेडिट करो बाय परचेस 20 एंड यहां पे डेबिट करो 20. परचेस को डेबिट करो, यहां पे आएगा 2A, यहां पे आएगा 2B, यहां पे आएगा 2C. एग्जाम्पल, नॉर्मली आप ऐसे करते थे 2A 2B 2C. फिर आपने डी से परचेस के 48, डी में आ गया बाय परचेसेस 48, डी में आया बाय परचेसेस 48, परचेसेस में आ गया 2D 48. बराबर? फिर हमने ए से परचेस किया 12, ए में आ गया बाय परचेसेस 12. राइट? यहां पे आ जाएगा 2A 12. फिर आपने सी से परचेस किया 20, तो सी में आ गया बाय परचेसेस 20 और यहां पे आ गया 2C 20. और ये अलग अलग डेट्स पे आता है. ये दिसंबर 1 को आएगा, ये दिसंबर 5 को आएगा, ये 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन सब को एक साथ ही लिख दिया. इतने बार लिखने से हमने एक ही बार लिख दिया. क्या? टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. कब लिख दिया? 31 दिसंबर. टू सन्ड्रीज एज पर, बिकॉज परचेस अकाउंट हमें किसको देना नहीं होता है, ये हमारा अकाउंट है. सो इंस्टेड ऑफ, जनरली हम क्या करते हैं, लाइक हमने ए में लिखा है बाय परचेस, परचेस में लिखेंगे 2A. अगर हमने ए में लिखा है बाय परचेस, परचेस में लिखेंगे 2A. ध्यान देना, हमने बी में लिखा है बाय परचेस, तो परचेस में लिखेंगे 2B. बराबर? सी में लिखा है बाय परचेस, तो इसमें लिखेंगे 2C डेबिट करेंगे उस दिन पे. यहाँ पे डी में लिखा है बाय परचेस 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेस 48. बट एक्चुअली क्या होता है, इतना सब करने से हम मंथ के एंड में ये सब एक ही साथ लिख देंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज. तो अगर आपको उसका डिटेल चाहिए, किससे कितना परचेस किया है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, परचेस बुक में मिल जाएगा. परचेस बुक चेक करो, आपको मिल जाएगा, ऐसे उनका मतलब है. ठीक है? सो दिस इज शॉर्टकट. देखो कितने बार 1 2 3 6 बार परचेस में एक एक लिखने के एक ही बार लिख दिया. ठीक है? सो दिस इज अ पोस्टिंग. अभी हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है. मैंने खाली एक कंसेप्ट समझाई है.
नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गो मोर इन डीप, हम सेल्स बुक समझेंगे, परचेज रिटर्न समझेंगे, सेल्स रिटर्न समझेंगे, तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो डोंट गेट अफ्रेड कि बहुत डिफिकल्ट है, एकदम सिंपल थिंग है, कोई डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। सो एक जर्नल से पोस्टिंग कर सकते हो, एक दूसरा सब्सिडी बुक से पोस्टिंग करते हो। आपने क्या मेंटेन किया है आपको समझना है। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे जॉब के लिए जाते हो या ऑडिट के लिए जाते हो, लाइक आगे जाके, तो आपको पहले ये समझना है आपने क्या जर्नल मेंटेन किया, सब्सिडी बुक्स मेंटेन किया। जर्नल मेंटेन किया तो डेली रिकॉर्ड होगा, डेली पोस्टिंग होगी, डेली रिकॉर्ड होगा, डेली पोस्टिंग होगी, डेली रिकॉर्ड होगा, डेली पोस्टिंग होगी। बट अगर सब्सिडी बुक्स आपने मेंटेन किए तो रिकॉर्ड डेली बेसिस पे होगा एंड पार्टीज अकाउंट में डेली बेसिस पे पोस्टिंग होगी। बट ये जो परचेस अकाउंट है ना, उसको मंथ के एंड में पोस्टिंग होगी। तो आपको समझना है कि क्या उनकी सिस्टम क्या है, रिकॉर्डिंग की सिस्टम क्या है, ठीक है। वैसे चलो आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में जाएंगे, ठीक है, और समझ के करेंगे। बट एट द एंड डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ही हो रहा है। परचेस अकाउंट में 2,35,000 होना चाहिए, तो 2,35,000 ही है। ए के अकाउंट में 1,02,000 क्रेडिट है, वो मेरा 1,02,000 क्रेडिट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ए के अकाउंट में 1,02,000 क्रेडिट ही है, आप देखो, राइट। बी के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट होना चाहिए और यहाँ पे 45,000 ही क्रेडिट है। आप यहाँ पे देखो, सी के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट होना चाहिए ओवरऑल, राइट। तो यहाँ पे भी सी के अकाउंट में 40,000 ही क्रेडिट है, आप चेक करो, राइट। और यहाँ पे इसके अकाउंट में 48,000 क्रेडिट होना चाहिए डी के अकाउंट में, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अकाउंट में 48 क्रेडिट है। एंड परचेस में डेबिट कितना होना चाहिए, 2,35,000 होना चाहिए। परचेस अकाउंट में डेबिट कितना है, 2,35,000 ही है। बट शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज सेशन, थैंक यू।